we have discussed some of the physical properties, melting point, boiling point, and why melting point, boiling point is high, why it increases left to right at till the middle of the series, and then after it decreases. That is over yesterday. Then after enthalpy of atomization we had discussed, and ionic and atomic radii. In ionic and atomic radii, the pattern is that the ionic and atomic radii first decreases, then becomes stable, and then increases at another end. Why? That is over. And then after, there is a very small difference, or we can say the difference between the atomic size of 3D and 4D series is very high, but the atomic size of 4D and 5D is approximately similar. Why? Due to lengthenide contraction. 5D series elements are so lengthenide contraction, due to which the size is decreases and that becomes equal to the 4D. This we had discussed yesterday. Now we need to start the another periodic property, that is ionization enthalpy. These are the periodic property, not the physical property. First periodic property was there, that is atomic and ionic radii. Next periodic property is here, ionization enthalpy. Now, what is happening in ionization enthalpy? We will see that, as you know, when we will move left to right, then ionization enthalpy is increases, and when we will move up to down, then ionization enthalpy is decreases. This is the common pattern for periodic table that you have seen in class 11th and class 10th. Okay, when we will move left to right, ionization enthalpy is increases. Why? Because the ionization enthalpy is amount of energy which required to remove one electron from the outermost shell of any atom. So as we know, left to right size is decreases, so ionization enthalpy will be increases, and up to down size increases, so ionization enthalpy will be decreases. So because we will not discuss in up to down, we will discuss in left to right in series. So here it is given, due to increase in nuclear charge, because size is decreases, nuclear charge increases. Left to right size is decreases and nuclear charge is increases. That's why the ionization enthalpy will be increase. ये लिखा है. Now the first, अब हमको ये भी कॉन्सेप्ट मालूम है कि the third ionization enthalpy is always more than second ionization enthalpy, and second ionization enthalpy is always more than first ionization enthalpy. मतलब जैसा हम जानते हैं फर्स्ट ionization enthalpy सबसे कम होता है, सेकेंड ionization enthalpy उससे ज्यादा होता है, और थर्ड की ionization enthalpy सबसे ज्यादा होती है. So what is the meaning of first ionization enthalpy? What is the meaning of second ionization enthalpy? And what is the meaning of third ionization enthalpy? पहले तो ये क्लियर होना चाहिए. आई होप कि आपको पता ही होगा कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन from the outermost shell of any isolated gaseous atom, that is called IE1, ionization enthalpy 1. Now next, the amount of energy required to release second electron. second electron का मतलब ये मत समझिएगा, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट, कि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है. आई एम नॉट सेइंग 2 इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब ये मत समझिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, और 3 इलेक्ट्रॉन करने के लिए. ये इसका कॉन्सेप्ट नहीं होता है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस ऑलवेज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन. 1 इलेक्ट्रॉन बस रिलीज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है. इस 1 इलेक्ट्रॉन में पहला इलेक्ट्रॉन है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन है कि तीसरा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तब इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा. सो दूसरे इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियर फोर्स और बढ़ जाएगा,
तो उसको निकालने के लिए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और एनर्जी चाहिए, तब 2+ चार्ज आ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ जाएगा। तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फिर और एनर्जी चाहिए। दैट्स वाई ऑलवेज द आई ई थर्ड का मतलब प्लीज, इट डजंट मीन्स कि 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकालने की कहीं बात नहीं होती है, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन की होती है। और IE1 का मतलब है पहला इलेक्ट्रॉन, IE2 का मतलब है दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। एंड IE3 का मतलब है इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये तीनों एनर्जी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन को निकालने की है। लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते हैं, एटम न्यूट्रल होता है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी कम रिलीज होती है क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स कम होता है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने जाते हैं, तो क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज हो चुका है, सो उस पर प्लस चार्ज आ गया है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया है, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने जाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले से रिलीज हो चुके हैं, 2+ चार्ज उस पर आ चुका है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो चुका है। सो थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। सो इसको कहा जाता है कि IE3 ज्यादा होता है, हमेशा IE3 ज्यादा होता है, IE2 कम होता है, IE1 सबसे कम होता है। ये सारे एलिमेंट में है। बट व्हाट इज स्पेशल इन डी ब्लॉक? डी ब्लॉक में स्पेशल क्या है वो आपको यहाँ देखिए। दिस इज द पार्ट ऑफ योर NCERT बुक। ये आपका एलिमेंट का नाम है और ये उनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी है। ऊपर कॉन्फ़िगरेशन है, नीचे आयोनाइजेशन इंथैल्पी है। नाउ सी, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी 631, second ionization enthalpy means IE2 1235, third ionization enthalpy that is 2393। सो अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में कितने का डिफरेंस है? अप्रोक्स 600 का। लेकिन सेकंड और थर्ड के बीच में कितने का डिफरेंस है? अप्रोक्स 1200 या 1100 का। 1150 का लगभग आपका 1160 का है, तो अप्रोक्स 1200 या 1150 मान लीजिए। सो सी क्वेश्चन, ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है की एनर्जी सेकंड से ज्यादा होती है और सेकंड की एनर्जी फर्स्ट से ज्यादा होती है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है एंड दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये बिल्कुल कंफर्म है। बट लॉजिक ये है कि बाकी एलिमेंट की अगर बात करें तो उसमें इनके बीच जो डिफरेंस होता है एक रेशियोनल डिफरेंस होता है कि अगर IE2 इससे 600 ज्यादा है तो IE3 भी इससे 6 या 700 ही ज्यादा होगा। बट यहाँ क्या हो रहा है? द डिफरेंस बिटवीन IE2 एंड IE3 इज double or difference between IE1 and IE2। IE1 IE2 में 600 का डिफरेंस है, तो IE2 IE3 में 700 का होना चाहिए, 800 का होना चाहिए, लेकिन यहाँ डबल का डिफरेंस है। 656, 1309 एंड 2657 लगभग सब में वही है। जो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, सेकेंड एंड थर्ड के बीच का डिफरेंस जो है डबल है, फर्स्ट और सेकेंड के अप्रोक्सीमेटली डबल है सब में। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई द डिफरेंस इन सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी is double of the difference between first and second ionization enthalpy। Why? What is the reason behind this? ऐसा बाकी एलिमेंट में नहीं होता है, ऐसा केवल डी ब्लॉक में होता है। बाकी एलिमेंट में ऐसा नहीं होता है। बाकी एलिमेंट में डिफरेंस अगर फर्स्ट सेकंड में 600 का है तो सेकंड थर्ड में 700 का होगा, 800 का होगा, या मे बी 600 का ही होगा, और मे बी उससे कम भी होगा। लेकिन डबल का नहीं होता है कि इनके इनके बीच में 600 है तो इनके इनके बीच में 1200 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाई द डिफरेंस बिटवीन द IE2 and IE3 is double of the difference between IE1 and IE2 of D block element। The reason is here,
C. When we will release the first and second electron, then from where these electron will be released out? Outermost cell. पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसमें से रिलीज होगा? आउटर मोस्ट सेल से, यानी सबसे बाहर के सेल से। अगर हम ले लेते हैं फोर्थ सेल से, फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होगा। सो फर्स्ट और सेकंड में 600 का डिफरेंस है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम सेल से रिलीज हो रहे हैं, सेम डिस्टेंस पर हैं, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर न्यूक्लियर चार्ज है। लेकिन जब फर्स्ट वाला रिलीज हो जाता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इसलिए सेकंड वाले का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। बट द थर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ब्लॉक एलिमेंट, जो तीसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, दैट इज फ्रॉम पेनल्टी में डी ऑर्बिटल, मतलब इसके अंदर वाली सेल से रिलीज होगा थर्ड इलेक्ट्रॉन। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन अंदर की सेल से रिलीज होगा तो कॉमन सी बात है, डिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा। एक तो डिस्टेंस कम है, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है, दूसरा दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं तो इस पे प्लस चार्ज आ रहा है, तो उसका भी फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है। सो बिकॉज द थर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम पेनल्टी में डी ऑर्बिटल और सेकेंड लास्ट सेल डी ऑर्बिटल, that's why it require approximately double energy than the first and second electron। इसलिए इसको फर्स्ट सेकेंड इलेक्ट्रॉन से क्या होती है, डबल एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड जो है, अगर ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का है तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे न्यूक्लियर फोर्स कम है, और ये डिस्टेंस अगर 0.75 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पहले से न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है, और जब दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे इस पे दो प्लस चार्ज हो जाएगा तो और न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा, इसलिए हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से निकलता है, इसलिए न्यूक्लियर फोर्स कम होता है तो एनर्जी कम चाहिए होती है, एनर्जी डिफरेंस कम आता है। बट थर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिलीज आउट फ्रॉम द पेनल्टी में डी ऑर्बिटल और सेकेंड लास्ट सेल, दैट्स वाई it has more nuclear charge, so it's require more energy, that is approximately। इसलिए तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सारे में लगभग डबल एनर्जी जरूरत पड़ रही है। 16 का 2, 15 का 30, 15 का 32, 15 का 30, का 20, 7, 19 का 35, 78, अप्रोक्सीमेटली डबल। सो ये क्वेश्चन पूछता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी से, ठीक है। व्हाई द डिफरेंस बिटवीन द second and third ionization enthalpy is double of the difference between first and second ionization enthalpy, or why the third ionization enthalpy is very high for d block element, because the third electron is released out from the penultimate d orbital n minus 1 d orbital, so it has more nuclear charge, so it requires more energy। now आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, वही आपका बता रहा है। अब ये सीरीज, यस यस Sir, this occur only in D block elements? Only in D block, only in D block, because D block में ही ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, NS1 to 2 N-1 D1 to 10। सो तीसरा इलेक्ट्रॉन हमेशा डी में आएगा, इसमें पहला दूसरा। अगर आप पी ब्लॉक जाएंगे तो NS2 NP1 to 6 आता है, तो इस केस में सारे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के हैं। आपको पहले ही बता दिए थे, एस और पी ब्लॉक में बोलते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू आउटर मोस्ट सेल, लेकिन डी ब्लॉक में बोलते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। सो ये सारे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के हैं, मतलब सेम सेल के हैं, केवल ऑर्बिटल अलग है, सेल वही है, दूसरा सेल तीसरा सेल जो भी है। एस में भी सेल वही है, डी में आकर के ये सेल एक अंदर का हो जा रहा है, और एक अंदर का हो जा रहा है इसलिए इसका चार्ज ज्यादा होगा, और प्लस निकलने के बाद फर्स्ट सेकेंड निकलने के बाद और इस पे प्लस चार्ज आ जा रहा है तो न्यूक्लियर फोर्स और बढ़ जा रहा है, सो इसका चार्ज और बढ़ जा रहा है, सो इट रिक्वायर वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी।
इज दैट क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. सर यस। सर वेनेडियम का सर टाइटेनियम से फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम क्यों है सर? और सर ये दूसरा तो क्वेश्चन सर एक और क्वेश्चन है ये सर। तो ये तो इसके आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसमें 2d ऑर्बिटल फिल है, 2d ऑर्बिटल फिल है, ठीक है। और इसमें क्या है, 3d ऑर्बिटल फिल है, 3d ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। तो ये इस पे भी कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन आके इसको प्रोसीड कराता है आगे की तरफ स्टेबल होने के लिए, तो उस केस में ये ऐसा हो जाता है। इसमें आपका ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन आता है कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से। जैसे आपका यहाँ पे अब देखिए, जो आप क्रोमियम बताया गया था 4s1 है, तो आप कहेंगे सर इसमें तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी डी से निकाला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी डी से निकाला जाएगा, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बहुत ज्यादा होना चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन डी से जरूर निकाला जाएगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है एस का ही इलेक्ट्रॉन है, केवल डी में जाकर के उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो जब हम उसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में करते हैं तो ये वापस से एस में चला आता है, फिर हम रिलीज करते हैं। तो ये इसके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है और उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है। उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी भी इससे कम होती होगी, इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा चाहिए और इसकी एनर्जी क्या है, कम चाहिए। या ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे, अभी इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है, दीज एलिमेंट्स आर सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे +2 से +7 तक शो करते हैं। तो कुछ एलिमेंट में जैसे वेनेडियम हो गया, वेनेडियम में ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल +3 या +2 आता होगा, तो +2 आ रहा है या +3 आ रहा है, और टाइटेनियम में +2 आ रहा है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा है, तो इसको अपना ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल करना है जल्दी से, तो इसलिए इसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो वो एक चीज पे डिपेंड नहीं करता है, ये कई चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन जब हम दो में डिफरेंस पढ़ेंगे, मैंने आपसे इसीलिए ये नहीं बताया, मैंने कहा एक की बात की। जब हम किसी दो एलिमेंट में डिफरेंस देखते हैं तो हमको एक कॉन्सेप्ट पे नहीं देखना होता, 3-4 कॉन्सेप्ट उसमें लगते हैं। और जब हम एक ही एलिमेंट में देखेंगे तब हम एक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो अभी हम आपको जो बताए थे केवल एक एलिमेंट की बताए थे, किसी भी एलिमेंट के सेकंड और थर्ड की आयनाइजेशन एंथैल्पी वो फर्स्ट सेकंड से डबल होती है। जब आप 2 के बीच में जाएंगे या 3 के बीच में जाएंगे तो आप केवल कॉन्फ़िगरेशन देख के नहीं बता सकते, आप उसके फिजिकल स्टेट पे भी जाएंगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखेंगे। किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, किसी का +3 है, किसी का +4 है, किसी का +5 है। इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट भी अलग अलग है। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ सुटेबल हो जाता है वहां पे उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है। अब उससे आप चेंज करेंगे तो वहां पे ज्यादा चाहिए, तो उस केस में ये सब होता है। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अगर आपको टाइटेनियम वेनेडियम 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तब आपको इसकी और भी प्रॉपर्टी चेक करनी होगी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट किसका कितना स्टेबल है, किसका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, तब उस हिसाब से आपको उसको चेक हो पाएगा। सो नाउ सर नेक्स्ट वन अभी आगे आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी आगे आएगा। हाँ बोलिए। सर ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट सर वेरिएबल होता है सर, ये जो दूसरे एलिमेंट जो इससे जुड़ते हैं उनकी वजह से वेरिएबल होता है? दूसरे एलिमेंट जैसे सर जैसे मतलब कि सर अगर ऑक्सीजन से कोई एलिमेंट आके जुड़ गया सर, जैसे कार्बन जुड़ हाँ, गया और फिर कार्बन की जगह एक बार मैंगनीज जोड़ दिया, तो सर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर कर जाएगा ऑक्सीजन का। तो ये डिफरेंट एलिमेंट को जो इनके साथ जोड़ने की वजह से हो रहा है? नहीं, ये अभी आपको आगे यहाँ पे मिलेगा, मैंने आपको सीट तो भेजा है, ये इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये इतना ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए टाइटेनियम शो कर सकता है। देखिए टाइटेनियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 4 दिखा रहा है, इसका 5 दिखा रहा है। जो बोल्ड अल्फाबेट है, बोल्ड नंबर्स है, ये इसके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, इसमें ये जल्दी आना चाहता है। सो ये इतने ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +2 to +5, +2 +3 +4, तो ये इतने शो कर रहा है। लेकिन ये सारे एलिमेंट के साथ इतना शो करेगा ये क्लियर नहीं है, ये क्लियर नहीं है। कुछ के साथ केवल +2 शो करेगा,
कुछ के साथ केवल +3 शो करेगा। तो ये डिपेंड करता है जो सेकंड एलिमेंट आके अटैच हो रहा है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी है। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा रहेगी वो इससे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करा पाएगा और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा से ज्यादा शो करेगा। और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी वो इससे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं अपनी तरफ कैप्चर कर पाएगा, तो उस समय वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो जो आप अगर ये पूछना चाह रहे हो कि ये +2 +3 +4 एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो नहीं, +2 +3 +4 इसके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। लेकिन किस एलिमेंट के साथ कितना शो करेगा, तो ये आप कह रहे हो, तो ये नेक्स्ट एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि आने वाला एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है कि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ठीक है, अगर वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोवाइड करेगा। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो कम से कम, जैसे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो फ्लोरीन और फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फ्लोरीन, सबसे ज्यादा फ्लोरीन और फिर ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन की कम है। तो जितने भी एलिमेंट अभी आप आगे पढ़ोगे, अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं वो या तो ऑक्सीजन के साथ शो करते हैं या तो फ्लोरीन के साथ। शो दोनों के साथ करते हैं। क्यों दोनों के साथ शो करते हैं? क्योंकि ये दोनों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये दोनों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा सकते हैं, तो उसको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करा सकते हैं। लेकिन इन दोनों में सबसे स्टेबल कंपाउंड कौन सा होता है, फ्लोरीन वाला कि ऑक्सीजन वाला? तो सबसे स्टेबल ऑक्सीजन वाला होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है, इट कैन फॉर्म डबल बॉन्ड। सो डबल बॉन्ड भी बनाएगा तो ये उसको ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, और फ्लोरीन केवल सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो स्टेबिलिटी कम रहेगी। ये सारा कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ ये सारा देखिए, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल शो करता है, ये आने वाले एलिमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट किस कंपाउंड में स्टेबल होगा ये आने वाले एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, ये वेरिएबल शो कर रहा है, ये एलिमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि +2 +3 +4 +5 शो कर रहा है तो ये अलग एलिमेंट के कारण, ऐसा नहीं है। ये शो करेगा एलिमेंट चाहे जो हो। ऑक्सीजन के साथ ये +2 भी शो करेगा, +3 भी शो करेगा, +4 भी शो करेगा और +5 भी शो करेगा। लेकिन +5 वाला भी स्टेबल होगा, +4 वाला लेस स्टेबल होगा, +3 वाला लेस स्टेबल होगा, +2 वाला लेस स्टेबल होगा। तो वो स्टेबल सबसे ज्यादा +5 वाला शो करेगा, तो ऑक्सीजन के साथ हायर वाला ज्यादा कंपाउंड आपको मिलेगा, और क्लोरीन के साथ लोअर वाला ज्यादा कंपाउंड मिलेगा, आयोडीन के साथ लोअर वाला ज्यादा कंपाउंड मिलेगा। तो ये आपका इस तरीके से चलता है। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा किसके साथ शो करेगा, तो ये नेक्स्ट एलिमेंट पे डिपेंड करेगा। लेकिन कितना शो करेगा तो ये दूसरे एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता, ये इसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, और ये डिपेंड करता है इसके कॉन्फ़िगरेशन पे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये भी। इज दैट क्लियर? यस सर। यस ओके, सर। अभी आएगा, अभी सारी चीजें धीरे धीरे आएंगी। सो आयोनाइजेशन इंथैल्पी हम लोगों ने देखा कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एलिमेंट का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब कहीं कहीं वेरिएशन भी है। जैसे आपने कहा कि फर्स्ट आयोनाइजेशन इसका 650 है, इसका 656 है, फिर 653 है, फिर सीधे 717 हो गया। अब 717 क्यों हो गया? क्योंकि ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल बन गया, हाफ फील्ड सेल बन गया, हाफ फील्ड सब सेल बन गया। हाफ फील्ड सब सेल है तो स्टेबल है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है। फिर देखिए 762 बढ़ा, फिर 758 हो गया, फिर 736 हो गया, फिर बढ़ गया 745 और फिर डायरेक्ट बढ़ गया 906, क्योंकि इसमें दोनों स्टेबल हैं। तो ये पर्टिकुलर 2-3 के बीच में कंपेयर करेंगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन और बाकी चीजें देखनी होंगी कि इसका 745 है, इसका 900, अचानक से सीधे 200 इंक्रीज हो गया। तो रीजन क्या है कि दोनों कंप्लीटली फिल्ड सब सेल हो गए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। रिलीज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि आप उसको स्टेबल से अनस्टेबल बना रहे हो।
सो अब हम चल रहे हैं सीरीज में कि हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। सो सी द इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज प्राइमरली ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज as the transition element involve the gradual filling of n-1d orbital. Effect of increase in nuclear charge is partially cancelled by increase in screening effect. Consequently, the increase in ionization enthalpy along the period, ये period की बात कर रहा है, of d block element is very small. मतलब अगर हम 3D सीरीज से 4D सीरीज में जाएं, 4D सीरीज से 5D सीरीज में जाए, ठीक है, तो ये यहाँ पर बाकी कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा था, बाकी कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया है कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है और अप टू डाउन डिक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज हो रही है और अप टू डाउन भी इंक्रीज हो रही है। बस डिफरेंस ये है कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन अप टू डाउन इंक्रीज बहुत कम डिफरेंस है। तो इसमें अप टू डाउन में भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है ड्यू टू फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि जो नया सेल बन रहा है, नया सेल बन रहा है 4D में 4 सेल होगा और 5D में 5 सेल होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो डी वाला निकल रहा है वो पेनल्टीमेट सेल से निकल रहा है। सो एनर्जी थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इससे आउटर मोस्ट वाले से ज्यादा होगी। सो इसलिए इसमें याद रखिएगा डी ब्लॉक की कल बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक में यहाँ पे कॉन्सेप्ट ठीक उल्टा है कि अप टू डाउन भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज ही होती है, डिक्रीज नहीं होती है, लेकिन बहुत कम इंक्रीज होती है, वेरी स्मॉल। मेन हमको देखना था लेफ्ट टू राइट 3D सीरीज में। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड स्टेबिलिटी ऑफ मेटल इन गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट। सो अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का रिलेशन हम दिखाने जा रहे हैं आयोना स्टेबिलिटी ऑफ मेटल इन गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट की, उस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा कि नहीं होगा। So with the help of ionization enthalpy, we can predict which of the two metal of given oxidation state is thermodynamically more stable. इस कॉन्सेप्ट को याद किए रहिएगा, ये कॉन्सेप्ट आता है और ये जो है ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ऐसे करके। सो याद रखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर हमारे पास हो दो मेटल का, ठीक है, इन गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के अनुसार, सो वी कैन आइडेंटिफाई कि विच वन इज मोर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। थर्मोडायनेमिकली मतलब टेम्परेचर बेसिस पे कौन ज्यादा स्टेबल होगा, एनर्जी बेसिस पे। सो मेटल एम है जिसको 0 से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे तो IE1 कहेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो IE2 कहेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह से अगर +4 में जा रहा है तो IE1, IE2, IE3, IE4 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, चारों में जितनी एनर्जी हमारी यूज हुई है चारों को ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ दे रहा है एक रिएक्शन है निकेल 0 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, एक रिएक्शन है प्लैटिनम 0 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, एक रिएक्शन है निकेल 0 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है और एक रिएक्शन है प्लैटिनम 0 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है। सेम यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है, सेम यही क्वेश्चन पूछेगा और कहेगा कि विच वन इज मोर स्टेबल इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट। निकिल और प्लैटिनम दो एलिमेंट लिया है, निकिल का +2+4 लिया है, प्लैटिनम का +2+4 लिया है। अब कौन
+2 में ज्यादा स्टेबल होगा, कौन +4 में ज्यादा स्टेबल होगा। आउट ऑफ निकिल एंड प्लेटिनम विच वन इज मोर स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड विच वन इज मोर स्टेबल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +2 के लिए +1 +2 I1 I2 IE1 IE2 ऐड कर लिया, IE1 IE2 ऐड कर लिया, और +4 के लिए IE1 IE2 IE3 IE4 ऐड कर लिया। सो अब यहाँ क्या कर रहा है, IE1 plus IE2 of nickel is less than platinum, ठीक है, क्योंकि IE1 IE2 निकिल का कम है, प्लेटिनम का ज्यादा है, मतलब निकिल आसानी से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्युपाई कर सकता है। निकिल आसानी से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है और स्टेबल हो सकता है। अब देखिए प्लेटिनम को 2.66 चाहिए, निकिल को 2.49 चाहिए, तो कौन जल्दी स्टेबल हो जाएगा, निकिल। सो निकिल के लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होगा, +2। सो इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम ज्यादा स्टेबल है कि निकिल ज्यादा स्टेबल है, देन निकिल ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो जल्दी से +2 पा सकता है और स्टेबल हो सकता है। यही चीज अगर +4 वाले में देखें तो +4 वाले में प्लैटिनम का 9.36 है और निकिल का 11.29 है। सो निकिल का +4 में ज्यादा है, प्लैटिनम का कम है, तो +4 में कौन जल्दी स्टेबल होगा, कौन जल्दी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, प्लैटिनम। जो जल्दी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे भी आप समझना चाहें, दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी लगा सकते हैं कि द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट is inversely proportional to ionization enthalpy या total ionization enthalpy। जिसकी total ionization enthalpy कम होगी वो ऑक्सीडेशन स्टेट उसके लिए ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसे भी आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन आता है कि निकिल प्लेटिनम +2 में भी दिया रहेगा, +4 में भी दिया रहेगा, और कहेगा कि विच वन इज मोर स्टेबल स्टेट फॉर निकिल। निकिल के लिए कौन सा मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 की +4। तो निकिल का आयोनाइजेशन एंथैल्पी +2 में कम है और +4 में प्लेटिनम से ज्यादा है, तो निकिल का +2 स्टेबल होगा और प्लेटिनम का +2 निकिल से ज्यादा है और +4 कम है, सो प्लेटिनम का +4 ज्यादा स्टेबल होगा। क्वेश्चन डायरेक्ट लिख के आ सकता है, एमसीक्यू में भी नहीं, डायरेक्ट भी आ सकता है कि according to the above equation how we can say या prove that nickel +2 is more stable than platinum +2 and platinum +4 is more stable than nickel +4। तब आपको वहां बताना पड़ेगा बिकॉज यही जो सामने लिखा है IE1 plus IE2 of nickel is less than IE1 and plus IE2 of platinum, that's why nickel can get its oxidation state more easily, so it is more stable, and platinum, in platinum +4 oxidation state of platinum having less energy than +4 oxidation state of nickel, so that's why in +4 platinum is more stable। सेम क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन इस पर है और यही आता है, याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बाय द आयोनाइजेशन एंथैल्पी वी कैन आइडेंटिफाई विच वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल फॉर विच एलिमेंट, किस एलिमेंट के लिए कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। अगर हमको दोनों एलिमेंट का, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट और उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पता हो, ऑक्सीडेशन स्टेट और आयोनाइजेशन एंथैल्पी पता हो, देन बाय कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी वी कैन आइडेंटिफाई कि विच वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल फॉर विच एलिमेंट। नाउ अब आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स। सो 3D सीरीज एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट ये आपके सामने है। पहला इंफॉर्मेशन जो आप जानते हैं, दैट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो great variety of oxidation state।
in its compound. Remember this, transition element लिखा हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा. Don't say the D block element show variable oxidation state. ये मत कहिएगा कि D block element और all the D block elements show variable oxidation state, क्योंकि D ब्लॉक में ट्रांजिशन भी आते हैं, नॉन ट्रांजिशन भी आते हैं. यहाँ क्वेश्चन लिखा है ट्रांजिशन एलिमेंट का, नॉन ट्रांजिशन का नहीं लिखा है. सो ट्रांजिशन एलिमेंट शो, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते, ये आपको पता है. 3D सीरीज के सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ दिया है. स्कैंडियम +3 शो कर रहा है, टाइटेनियम +2 +3 +4 शो कर रहा है, वेनेडियम +2 +3 +4 +5 शो कर रहा है, क्रोमियम +2 +3 +4 +5 +6 शो कर रहा है, मैग्नीज +2 +3 +4 +5 +6 +7 शो कर रहा है, आयरन +2 +3 +4 +6 शो कर रहा है, आयरन +5 शो नहीं कर रहा है, कोबाल्ट +2 +3 +4, निकल +2 +3 +4, कॉपर +1 +2 एंड जिंक +2. सो अब ये आपको दिख रहा है सामने, इससे कम से कम 10 क्वेश्चन बनते हैं, मिनिमम 10 क्वेश्चन, बस इस एक पेज से, एक टेबल से. कैसे? क्वेश्चन देखिए, ये ऑक्सीडेशन आपको याद रहना चाहिए स्टेप. पहला क्वेश्चन, which one of the transition element not so variable oxidation state in 3D series. 3D सीरीज में कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है? तो क्वेश्चन देखिए, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी. ट्रांजिशन एलिमेंट कर रहा है जिंक और स्कैंडियम, यही दो ऐसे हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर रहे हैं, केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं. ठीक है, नॉट सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है केवल सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना. बट जिंक इज नॉन ट्रांजिशन, जिंक कैडमियम मरकरी नॉन ट्रांजिशन कहा गया है. और क्वेश्चन कर रहा है ट्रांजिशन, so your answer will be scandium, not zinc. Which transition element not show variable oxidation state or show only one oxidation state? तो हो गया स्कैंडियम. यही अगर क्वेश्चन में ट्रांजिशन हटा करके क्वेश्चन पूछ दिया इन 3D सीरीज which D block element show only one oxidation state, तब आप आंसर दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, स्कैंडियम या जिंक, क्योंकि दोनों डी ब्लॉक के हैं, 3D सीरीज से हैं, दोनों सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन, विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट? इस पूरे 3D सीरीज में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट केवल कॉपर शो करता है. क्यों, वो आगे पता चलेगा, अभी क्यों लिखना जानिए कि +1 केवल कॉपर शो करता है और कहीं +1 नहीं है. नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज नॉट शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट? 3D सीरीज में कौन सा एलिमेंट है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है? तो आप देखिए सारे में +2 है, केवल स्कैंडियम में नहीं है. So scandium is the element which not show +2 oxidation state, केवल scandium है. Next, which element of 3D series show highest number of oxidation state? See, listen the question. Highest number of oxidation state means question कर रहा है highest variety of oxidation state. So सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट टाइप कौन शो करता है? मैग्नीज, नॉट मैग्नीशियम, कंफ्यूज मत होइएगा. मैग्नीशियम इज Mg एंड मैग्नीज इज Mn. मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है, Mn यहाँ पे आपका है किससे? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ ग्रुप से बिलोंग कर रहा है. नाउ नेक्स्ट, कैसे सबसे ज्यादा शो कर रहा है? तो मैग्नीज +2 +3 +4
+5 +6 +7 +2 से +7, ये पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, मतलब टोटल 6 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। देन which one of the element in 3D series, 3D सीरीज केवल आपको पढ़ना है। 3D सीरीज शो हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन मैग्नीज। अगर इसी क्वेश्चन पे से नंबर हटा दिया जाए, which one of the 3D series, which one element of 3D series show highest oxidation state, तो highest oxidation state भी मैग्नीज ही शो करता है +7, कोई +7 शो नहीं कर रहा है। या ये भी पूछ सकता है which element of 3D series show +7 oxidation state, ओनली मैग्नीज, और कोई +7 में नहीं है। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए इसी से रिलेटेड। नाउ द क्वेश्चन इज हियर, if you will see the oxidation state in 3D series element, so ये +2, ये +2 +3 +4, +2 +3 +4 +5, +2 +3 +4 +5 +6, +2 +3 +4 +5 +6 +7, यहाँ तक लगातार नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। ये केवल 1 शो कर रहा है, ये 3 शो कर रहा है, ये 4 टाइप शो कर रहा है, ये 5 टाइप शो कर रहा है, ये 6 टाइप शो कर रहा है। लेकिन मैग्नीज के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। क्वांटिटी आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग ऑक्सीडेशन स्टेट, आई एम सेइंग क्वांटिटी। ये 6 टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था, +2 +3 +4 +5 +6 +7। आयरन आया तो 4 टाइप का शो करने लगा, कोबाल्ट निकिल 3 टाइप का, कॉपर 2 टाइप का, जिंक 1 टाइप का। सो क्वेश्चन ये पूछता है, पैटर्न देख लीजिए, when we will move in 3D series left to right, then first of all the number of oxidation state is increases till middle of the series, that is मैग्नीज। सीरीज के मिडिल पॉइंट तक 5 तक नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है, एंड देन आफ्टर the number of oxidation state is decreases. Why in 3D series when we will move left to right, the number of oxidation state first increases till middle of the series, and then after it decreases. So the highest number of oxidation state is showing the element present in the middle of the series. Why? सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कौन शो करता है? वो एलिमेंट जो सीरीज के मिडिल में है, मींस 5th नंबर पर है, और करता है। चलो ठीक है, ये तो हमको दिखलाई दिया, ऑब्जर्वेशन है, बट व्हाई, व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज हियर अगेन कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? D1, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम का D2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वैनेडियम का D3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम का D4, 4 अनपेयर्ड। मैग्नीज का D5, 5 unpaired electron. So number of unpaired electron in d orbital is increases from scandium to till magnesium. Sorry, not magnesium. Scandium to till manganese. That's why the number of oxidation state is also increases. But after manganese, the pairing of d electron start to takes place. So number of unpaired d electron is decreases. Unpaired d electron की quantity decrease हो रही है, so number of oxidation state is also going to be decreases. इसलिए number of unpaired electron decrease हो रहा है, so oxidation state भी क्या हो रहा है? Decrease हो रहा है. So remember this concept. पहले तो ये पूछेगा what is the pattern of oxidation state in 3D series? In 3D series, oxidation state left to right first increases till middle of the series, then after it decreases. Then why? First it increases, then till it decreases, because
the number of unpaired electron in d orbital is या penultimate d orbital is increases from first element to the middle element of the series, and then after it decreases due to pairing of d electron. Why the middle element, or why the element present in middle of the series so highest number of oxidation state? Because the element present in middle of the series is having highest number of unpaired electron in penultimate d orbital, क्योंकि जो एलिमेंट मिडिल ऑफ द सीरीज होता है उसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है डी ऑर्बिटल में, दैट इज 5, और उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने लगता है। तो अभी ऑक्सीडेशन स्टेट में ये 7-8 क्वेश्चन आपका मैंने पढ़ दिया और आंसर बता दिया। अभी 2-3 क्वेश्चन इसमें और बनेंगे विच वी विल डिस्कस टुमारो, ठीक है, which we will discuss tomorrow. So tomorrow we will start from the oxidation state once again. 5 minutes I will take to revise these all, and then I will proceed in the next questions. 7-8 question हो गए। कौन नॉन ट्रांजिशन, कौन ट्रांजिशन, कौन डी ब्लॉक, किसका सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा कौन शो करता है, सबसे ज्यादा कितना शो करता है, क्यों सबसे ज्यादा शो करता है, पैटर्न क्या है, क्यों मिडिल एलिमेंट ही सबसे ज्यादा शो करता है, ये सारी चीजें। एंड देन आफ्टर विल प्रोसीड इन नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है सारा, ये पीछे लिखा हुआ है। अभी 2-3 क्वेश्चन इसमें और बनेगा। इसी ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे वी विल आइडेंटिफाई दैट which compound will be act as reducing agent and which compound will be act as oxidizing agent। ये भी हमको ऑक्सीडेशन स्टेट से ही पता चलेगा कि कौन रिड्यूसिंग का वर्क करता है और कौन ऑक्सीडाइजिंग का। सो दैट वी विल डिस्कस टुमारो। सबसे बड़ा टॉपिक यही ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि मैक्सिमम चीजें इस पे डिपेंड है। तो कल का पूरा पीरियड भी हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आपका चला जाए। ये पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट ही है, ये पूरा, ये यहाँ तक ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके बाद आपका ये भी, ये भी, ये भी, और फिर आपका कुछ और स्टार्ट होगा। सो टुमारो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तब तक आप थोड़ा बहुत इसमें से पढ़ लीजिएगा। अभी हम लोग यहाँ तक डिस्कस किए हैं। ये लगभग हो चुका है डिस्कस। सो प्लीज रीड इट।